Let's start on our marketing research incomplete topic. ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं मार्केटिंग रिसर्च क्या है, what is the importance and scope of marketing research and what are the type of marketing research. अब ये क्वेश्चन हम देखेंगे. न्यू टॉपिक, what is the role of marketing research in marketing decision making. Role of marketing research in marketing decision making. प्योर प्रैक्टिकल आंसर है. Number one, for the success of marketing, it is necessary to understand and identify the customer needs. सीधी सी बात है, हमको पता होना चाहिए कि what does our customer want. Marketing research provide the information about the need of customer, which help him to implement marketing strategies and programs. सीधी सी बात है. Clear. Point number two, marketing research also provide the information about who are our customer, what is the status of competitor, what are the market forces which affect our business. So marketing research से जो चीजें हैं सब कुछ हमको easily available हो जाएगी. Marketing research satisfies the need of information of many national and international firm. Firm means businesses, चाहे small हो चाहे big हो. तो मार्केटिंग रिसर्च से क्या होता है कि हमको जो नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, लोकल लेवल की जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इजीली अवेलेबल हो जाएगी. Point number four, today the customer have become more affluent and sophisticated. Educated हो चुका है, समझदार हो चुका है, rational हो चुका है, जागरूक हो चुका है. So it is necessary for marketing manager to get information about how they will respond to the product and other marketing offer. इसीलिए कस्टमर की जानकारी होना ज़रूरी है. What does our customer want? What is the status of the customer? Clear. Point number five, there is a huge competition in the global market. Intense, ज़्यादा competition है, मरो या मारो, too tight competition. So marketing manager need information about effectiveness of various marketing tool. तो marketing manager पास सब information होना ज़रूरी है, तो ही हम competitor के सामने survive कर पाएंगे. In the changing environment, changes are very quick, so there is need for timely information. सीधी सी बात है. Point number seven, the task of marketing research is to assess the need and to provide relevant, accurate, reliable, भरोसे लायक, valid and current information to the manager. सबसे बड़ा काम यही है, रोल, कि जो भी रिसर्चर है उसकी जिम्मेदारी है कि वो इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट करे कि भाई करंट क्या चल रहा है, व्हाट इज द करंट स्टेटस, व्हाट इज द ट्रू इन्फॉर्मेशन, व्हाट आर द फैक्ट इन द मार्केट. क्लियर. टू द मैनेजमेंट, ताकि मैनेजमेंट सही समय पे सही तरीके से डिसीजन ले सके. टुडे कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट एंड इंक्रीजिंग कॉस्ट आर द मेन रीजन फॉर पुअर डिसीजन मेकिंग. फॉर एग्जाम्पल, पढ़ना, द डिसीजन ऑफ जॉनसन एंड जॉनसन, कंपनी का नाम सुना है ना, अपने इंडिया के अंदर बेबी शॉप ने बेबी प्रोडक्ट बनाती है, जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी. To use company name on baby aspirin was not correct. J&J gentleness could not handle the plan. So the management requires sound and complete information about the market. Therefore, marketing research is necessary. बहुत अच्छा बताया. क्या बताया कि उन्होंने जो अपनी बेबी प्रोडक्ट का नाम बेबी एस्प्रिन रखा था वो बराबर नहीं था. क्यों? क्योंकि उसका अंदर क्या था, जेंटलेस. जैसे कॉमन है कि जब तुम उसका कोड वर्ड रखते हो, उसका तुम सिंबल रखते हो, उसकी तुम कोई डिजाइनिंग करते हो, उसकी कोई तुम क्वालिटी क्वांटिटी निकालते हो, वो भी उसके प्रोडक्ट के रिलेटेड होना जरूरी है. पॉइंट नंबर नाइन, the marketing manager have to take decision about potential opportunity, कहाँ तक है, what is our target market, what is our segmentation, how to product shine in the market, in a new market. ये सब चीज़ हम ऑलरेडी हम प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च में पढ़ चुके. सो मार्केटिंग मैनेजर मस्ट हैव रिलायबल इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्केट. एंड पॉइंट नंबर 10, marketing research provide
इंफॉर्मेशन अबाउट मोस्ट पॉइंट काम का है कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स एंड कस्टमर। सीधी बात है कि कौन से फैक्टर हमारे हाथ में है, कौन से फैक्टर हमारे हाथ में नहीं है। उससे क्या होगा कि हम आसानी से सही तरीके से डिसीजन ले पाएंगे और हमारे बिजनेस को अच्छे तरीके से चला पाएंगे। क्लियर? तो ये तुम्हारा हुआ रोल ऑफ मार्केटिंग रिसर्च के मार्केटिंग रिसर्च का रोल क्या है। अब आता है मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये तो पढ़ाने की ज़रूरत नहीं, तो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर बीकॉम में भी पढ़ा है, सेकंड ईयर बीकॉम में भी पढ़ा है, और वापिस आए MIS यानी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। बराबर। तो यहाँ पे MIS का मतलब होता है मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो FY में आपने पढ़ा था मैनेजमेंट, तो वहाँ पे बिजनेस चलाना होता था। यहाँ पे इंफॉर्मेशन सिस्टम किसकी चाहिए? मार्केटिंग की चाहिए, यानी इंफॉर्मेशन सिस्टम के जरिए आप मार्केटिंग करोगे, अपना मार्केटिंग नीड्स को पूरी करोगे। देखो देखते हैं, अ मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ फॉर्मलाइज यानी सिस्टमेटिक सेट ऑफ प्रोसीजर, स्टेप बाय स्टेप है, फॉर जनरेटिंग यानी माहिती तैयार करना, एनालाइजिंग स्टडी करना, स्टोरिंग संग्रह करना, एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द इंफॉर्मेशन टू मार्केटिंग डिसीजन मेकर ऑन ऑनगोइंग प्रोसेस। ऑनगोइंग मीन्स कंटिन्यूअस प्रोसेस। देखो फर्क नहीं, जो डेफिनेशन अपना मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में पढ़ी थी वही यहाँ पे है। खाली फर्क क्या है कि वहाँ पे जो इंफॉर्मेशन डिसीजन होता था वो मैनेजमेंट का होता था, यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो मार्केटिंग के रिलेटेड होगी। क्लियर? When we look at the definition of MIS, it look almost similar, but MIS is different from MR। MCQ में शॉर्ट नोट में डिफरेंस बिटवीन आ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग रिसर्च एंड मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। देखते हैं। द फॉलोइंग आर द डिफरेंस बिटवीन, तो डेफिनेशन है मार्केटिंग रिसर्च की आपने पढ़ी हुई है, MIS की पढ़ी हुई है। कंप्यूटराइजेशन, मार्केटिंग रिसर्च इज नॉट 100% कंप्यूटराइज। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपको प्रोडक्ट की रिसर्च करनी है, मार्केट की रिसर्च करनी है, सेगमेंटेशन की रिसर्च करनी है, मार्केट की रिसर्च करनी है। मगर जो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिंपल इंफॉर्मेशन सिस्टम मीन्स IT सेक्टर ऑफ 100% कंप्यूटराइज एक्टिविटी है। Point number three, planned and unsolicited information. मार्केटिंग रिसर्च प्रोवाइड प्लान इंफॉर्मेशन। कॉमन है, मार्केटिंग रिसर्च क्या होती है? पहले से प्लान होती है कि भाई क्या करना है, क्या चेंजेस लाना है, कैसे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस और रिसर्च, एंड हाउ टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। But MIS provide unsolicited information on ongoing basis विच इज अवेलेबल एट एनी टाइम। मगर मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम कैसे? अनसोलिसिटेड है ना, वो जैसे जैसे समय चेंज होते जाएगा ऐसे ऐसे आपको इंफॉर्मेशन इजीली मिलती रहेगी। पॉइंट नंबर फोर, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक एंड कंटिन्यूस। जैसे मार्केटिंग जो रिसर्च होती है वो पर्टिकुलर कोई टॉपिक पे की जाती है। क्लियर? जैसे मार्केटिंग रिसर्च इज डन व्हेन अ प्रॉब्लम अराइज, जिसको बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग या प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन रिसर्च। It work on particular project, while marketing information system is a continuous, क्योंकि रुकने वाली नहीं, वो ऑटोमेटिक कंप्यूटर जनरेट सर्विस है, तो ऑटोमेटिक 100% चलती जाएगी चाहे आपको प्रॉब्लम हो या ना हो। पॉइंट नंबर फाइव, कॉन्ट्रैक्ट विद स्पेशलिस्ट एंड इन हाउस आर फ्री। द वर्क ऑफ मार्केटिंग रिसर्च इज असाइन ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। जिसको अपने रिसर्चर बोलते हैं कि आपको ये काम करना है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आपको ये रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो पर्टिकुलर वही चीज़ पे ध्यान देगा, तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ इतने समय में ये काम पूरा करना है। बट MIS इज फ्री एक्टिविटी, क्योंकि कंप्यूटर जनरेटेड है तो आपको इसके अंदर कोई एडिशनल खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। डेटा, तो मार्केटिंग रिसर्च कलेक्ट प्राइमरी डेटा वाइल MIS इज यूज सेकेंडरी डेटा। सीधी बात है ना कि इंफॉर्मेशन होगी, डेटा अवेलेबल होगा, तो ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए आपका काम चलते जाएगा। इनपुट, मार्केटिंग रिसर्च इज वन ऑफ द इनपुट फॉर MIS, बट बिसाइड MR देर आर मेनी इनपुट ऑफ MIS। यानी तुम ऐसा बोल सकते हो कि मार्केटिंग रिसर्च का जो एनालिसिस होगा, जो डेटाज होगा, जो रिसर्च होगी, जो कंडीशन होगी, वो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में इस्तेमाल होगी। मगर
मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का इनपुट मार्केटिंग रिसर्च में जो है, क्योंकि मार्केटिंग इंफॉर्मेशन के बहुत सारे इनपुट्स है आउटपुट्स है। क्लियर? फॉर्मालिटी, it cover only external information, MIS cover internal as well as external information। MCQ में आ सकता है कि मार्केटिंग रिसर्च which type of information it cover by marketing research, so it cover only external information। Objective, main objective of marketing research is to solve the problem, but the main objective of marketing information system is to prevent बचना as well as solve the problem। खाली प्रॉब्लम सॉल्व करने से नहीं होता, प्रॉब्लम से बचा कैसे जाए, प्रॉब्लम को प्रॉब्लम का सॉल्यूशन का इम्प्लीमेंट कैसे लाया जाए, वो सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है। क्लियर? लास्ट टॉपिक यूनिट 1 का मोस्ट आईएमपी, सबसे ज़्यादा एमसीक्यू यहीं से निकलेंगे। रिसर्च डिज़ाइन, रिसर्च डिज़ाइन, और रिसर्च डिज़ाइन इज़ अ फ्रेमवर्क, या तो रोड मैप या तो ब्लूप्रिंट फॉर कंडक्टिंग मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च को स्टडी करने के लिए, मार्केटिंग रिसर्च पे काम करने के लिए जो ब्लूप्रिंट तैयार होती है, दैट इज कॉल्ड रिसर्च डिज़ाइन। आपको कौन सी रिसर्च करना है उसका पहले से रास्ता, मेथड, टाइप्स, कंडीशन आपको तैयार अवेलेबल होनी चाहिए। It give detail of the method which is necessary to obtain the required information। यानी इसके अंदर पूरा के पूरा प्रोसीजर डिटेल में होगा जो आपको बताएगा कि आपको कौन से समय पे कैसा और किस टाइप का काम करना है। इट प्रोवाइड नॉट एंड बोल्ट का मतलब डिटेल इंफॉर्मेशन फॉर कंडक्टिंग रिसर्च, सो इट इज कंसिडर्ड एज अ बैकबोन ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। एमसीक्यू में आ सकता है कि रिसर्च डिज़ाइन क्या है, जैसे इंसान के शरीर में बैकबोन के बिना कुछ काम का नहीं, ना चल सकता है, ना बैठ सकता है, ना खड़ा हो सकता है, तो इसी तरह मार्केटिंग रिसर्च के अंदर रिसर्च डिज़ाइन मार्केटिंग रिसर्च की बैकबोन है। क्लियर? कंपोनेंट ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, अब ये सब चीज़ तुम यूनिट 2-3 के अंदर पढ़ोगे। फर्स्ट वन इज रिसर्च डिज़ाइन कैसे होती है, टू डिफाइन द इंफॉर्मेशन नीड। सबसे पहले तो हमको कौन सी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है उसको हमको नक्की करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2, टू डिज़ाइन द टाइप ऑफ रिसर्च। एक्सक्रिप्टिव एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है, कंक्लूसिव रिसर्च है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, कैजुअल रिसर्च है, सर्वे रिसर्च है, सब तुम आगे पढ़ोगे। नंबर 3, टू स्पेसिफाई द स्केलिंग प्रोसीजर। उसको मेजर कैसे करना है, उसको कैलकुलेट कैसे करना है, उसको वेट कैसे देना है, उसको इम्पोर्टेंस कैसे देना है, उसका कैलकुलेशन कैसे करना है। देन टू प्रिपेयर अ क्वेश्चनरी, यूनिट टू में पढ़ोगे, तुमने पढ़ेला प्रश्नावली निमित्त। टू स्पेसिफाई द सैम्पलिंग प्रोसेस। अब कॉमन है, तुमने 10,000 लोगों पे रिसर्च करी तो 10,000 लोगों पे तुम स्टडी नहीं कर सकते, इतना समय नहीं है, तो उसमें से आप सैंपल निकालोगे और सैम्पलिंग प्रोसेस करोगे, ये जो यूनिट 4 में पढ़ना है। एंड फाइनली टू डेवलप अ प्लान फॉर डेटा एनालिसिस, उसके बाद आप अपना डेटा का प्लानिंग कंटिन्यू करोगे। अब देखेंगे हम मार्केटिंग रिसर्च में 2 टाइप के, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग। मगर मार्केटिंग रिसर्च डिजाइन भी 2 प्रकार की है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च एंड कंक्लूसिव रिसर्च। बहुत काम की इसमें से मोस्ट सबसे ज़्यादा आईएमपी पूछाने के चांसेस है। देखते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। The primary objective of exploratory research is to provide insight into an understanding of problem। सीधी बात है, डिटेल में प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करना। The finding of this research are used by either exploratory research further or conclusive research। ये जो रिजल्ट मिलेगा, जो हमने प्रॉब्लम को फाइंड आउट करी, इसको तुम या तो वापस से एक्सप्लोरेटरी के अंदर और डिटेल में जाओगे, या तो इसको तुम कंक्लूसिव रिसर्च में इस्तेमाल करोगे। पर्पस ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, मकसद क्या है? तो नंबर 1, टू डिफाइन द प्रॉब्लम मोर सिस्टमेटिकली, प्रॉब्लम को आसानी से समझना। टू आइडेंटिफाई द सोर्सेज ऑफ एक्शन, कौन से अल्टरनेटिव अवेलेबल है। टू हाइपोथेसिस, ये भी हमने पढ़ा हुआ है।
to separate key variable and their interrelationship for further examination के कौन से मुद्दे हमारे काम के जिसके ऊपर हमको एडिशनल इंफॉर्मेशन एडिशनल माहिती की ज़रूरत पड़ेगी टू डेवलप मेथड टू द प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना उसकी कौन सी मेथड इस्तेमाल करनी है एंड टू एस्टैब्लिश प्रायोरिटी फॉर फर्दर स्टडीज अगर सॉल्यूशन यहाँ नहीं मिलता तो इसको डिटेल में स्टडी करना है तो आगे कौन सी मेथड से इसको एनालिसिस करना है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज फ्लेक्सिबल एंड अनस्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर का मतलब कि इसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट फिक्स नहीं होता वो डिपेंड करता है सिचुएशन के हिसाब से अगर सिचुएशन चेंज होती है तो तुम्हारी रिसर्च की मेथड तरीका और कंडीशन चेक करने का तरीका भी चेंज हो जाएगा बिकॉज इट डज नॉट यूज इन फॉर्मल मेथड एंड स्ट्रक्चर क्वेश्चन है अब इसके अंदर कौन सी मेथड है सर्वे ऑफ एक्सपर्ट की सलाह लेना पायलट स्टडी यानी केसेस जो हो चुके हैं जो ऑलरेडी आप बिलो ऑडिट में पढ़ते थे केस स्टडी करना सेकेंडरी डेटा क्वालिटेटिव एनालिसिस द्रोण माहिती ये भी आप पढ़ चुके हो एंड क्वालिटेटिव रिसर्च ये चीज़ तुम्हारे लिए नहीं है तो ये सब चीज़ तुम डिटेल में ये यूनिट में तो नहीं आगे की यूनिट सब चीज़ आप डिटेल में पढ़ने वाले हो तो ये होती है एक्सप्लोरेटरी वापिस बोलता हूँ एक्सप्लोरेटरी का मतलब क्या होता है डिटेल प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना या तो उसके बाद रिसर्च करने के बाद जो अंडरस्टैंड करने के बाद जो फाइंडिंग आएगा इसको या तो तुम यही मेथड में वापस से डिटेल में जाओगे या तो कंक्लूसिव रिपोर्ट में चले जाओगे क्लियर सेकंड वन इज कंक्लूसिव रिपोर्ट द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंक्लूसिव रिपोर्ट इज टू टेस्ट हाइपोथेसिस अब हाइपोथेसिस क्या है तो ऑलरेडी अपने पढ़ चुका है एज्यूम करके चलना एनालिसिस करना टी टेस्ट जेड टेस्ट पढ़ा था ना फर्स्ट ईयर बीकॉम में एंड टू एग्जामिन द रिलेशनशिप और उसके बीच में हाइपोथेसिस निकालने के बाद दोनों के बीच में रिलेशन क्या है उसको फाइंड आउट करना इट इज मोर फॉर्मल देखो एक्सप्लोरेटरी फ्लेक्सिबल है और अनफॉर्मेटेबल है ये स्ट्रक्चर्ड है और फॉर्मल है इट रिक्वायर क्लियरली डिफाइंड इन्फॉर्मेशन वहाँ पे तो कोई भी इंफॉर्मेशन चल जाएगी मगर यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन है उसका क्लियर डेफिनेशन क्लियर डिस्क्रिप्शन होना ज़रूरी है इट यूज लार्ज सैंपल वो लार्ज सैंपल यूज नहीं करती थी याद रखना कौन एक्सप्लोरेटरी द फाइंडिंग ऑफ दिस रिसर्च आर यूज्ड एज इनपुट टू टेक मिनेजरल डिसीजन एक्सप्लोरेटरी से आप डिसीजन नहीं लेते थे एक्सप्लोरेटरी में आप फाइंडिंग करते थे उसको आप कंक्लूसिव में डालते थे जो कंक्लूसिव रिसर्च का फाइंडिंग होगा डायरेक्टली मैनेजर मैनेजमेंट में डिसीजन में काम लेगा देर आर टू टाइप ऑफ रिसर्च डिस्क्रिप्टिव एंड कैजुअल जैसे याद रखना उसके अंदर कौन सी थी पायलट स्टडी सर्विस ऑफ कंसल्टेंट यानी एक्सपर्ट कंसल्टेंट को सेकेंडरी मेथड एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस इसी तरह कंक्लूसिव के अंदर दो प्रकार के डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एंड कैजुअल रिसर्च देखते हैं दोनों दो में डिफरेंसेस क्या है क्लियर descriptive research explore sorry what is the difference between exploratory and conclusive उसके बाद तुम डिस्क्रिप्शन अब इसकी कोई डिफरेंस पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मैंने बता दिया था देखो प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना हो तो एक्सप्लोरेटरी न उसको स्पेसिफिक केस करना हो तो कंक्लूसिव पॉइंट नंबर 2 एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज अ रिसर्च इन विच इंफॉर्मेशन इज लूजली डिफाइंड वहाँ अनस्ट्रक्चर्ड है या पूरा के पूरा स्ट्रक्चर्ड है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च फाइंडिंग आ टेनेटिव का मतलब क्या होता है वो डिसीजन मेकिंग में काम नहीं आएंगे मगर कंक्लूसिव रिसर्च से डायरेक्ट तुम कंक्लूजन पे आ जाओगे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च आगे या तो तुम एक्सप्लोरेटरी में इस्तेमाल कर सकते हो या कंक्लूसिव में कर सकते हो मगर कंक्लूसिव का जो रिजल्ट आएगा वो डायरेक्टली डिसीजन मेकिंग में काम आएगा क्लियर अब आता है डिटेल में डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या है और the main objective of descriptive research is to describe something about various market characteristics मार्केट के लक्षण के ऊपर स्टडी करना डिस्क्रिप्शन देना एक्सप्लेनेशन देना द पर्पस ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च आर एज फॉलो नंबर 1
टू डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिलेवेंट ग्रुप। रिलेवेंट ग्रुप का मतलब कस्टमर भी आ गए, सेल्समैन भी आ गए, बड़े बड़े स्पेसिफिक एम्प्लॉय भी आ गए, सब लोग आ गए, बड़ा मार्केट भी आ गया। फॉर एग्जाम्पल, टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ हेवी यूजर ऑफ बिग बाजार, सीधी है ना डिस्क्रिप्शन कि बिग बाजार के अंदर कस्टमर भी आ गए, एम्प्लॉय भी आ गया, स्टाफ आ गया, मार्केट आ गया, एरिया आ गया, सब आ गया। नंबर टू, टू एस्टिमेट द परसेप्शन ऑफ पीपल। परसेप्शन का मतलब वहाँ पे जो बिग बाजार का जो एग्जाम्पल है इसको कंटिन्यू करेंगे कि वहाँ पे लोगों का परसेप्शन कैसा है, कि भाई वहाँ पे जो बिग बाजार के यूजर है वो कौन से प्रोडक्ट पे ज़्यादा दिया है, तो उनका एस्टिमेशन क्या, उनकी राय क्या, उनकी नीड क्या है। टू डिटरमाइन द परसेप्शन ऑफ पीपल रिगार्डिंग प्रॉपर प्रोडक्ट, अगर वो प्रोडक्ट खरीदते तो उनकी उसके ऊपर राय क्या है, परसेप्शन क्या है। टू डिसाइड द डिग्री upon which marketing variable are associated. And point number 5, to make specific prediction, जैसे what will be the retail sale of बिग बाजार in फतेहगंज एरिया फॉर फैशनेबल क्लॉथिंग। देखो बिग बाजार के अंदर खाली कपड़े नहीं है, बराबर, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आप हर चीज़ के अंदर डिटेल में जा सकते हो कि भाई कंज्यूमर गुड्स में क्या है, इलेक्ट्रिक गुड्स में क्या है, होममेड गुड्स में क्या है, फिर उसके बाद ड्यूरेबल गुड्स के अंदर क्या है। तो ये तुम्हारा होगा पर्पस, यानी जो भी तुम रिसर्च करोगे यहाँ पे डिटेल में करोगे, डिटेल में जाके उसका एनालिसिस और फाइंडिंग करोगे। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज प्री प्लान एंड स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब मैंने ऑलरेडी बता दिया कि कंक्लूसिव के अंदर दोनों दो रिसर्च स्ट्रक्चर ही है। मेथड ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, सेकेंडरी डेटा, सर्वे, पैनल एंड ऑब्जर्वेशन, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, तो सबकी अलग अलग मेथड है। सेकेंडरी का मतलब बाहर से डेटा कलेक्ट किया, सेकंड सोर्स से एनालिसिस कर लिया। सर्वे, खुद जाके स्टडी करो। पैनल के स्पेसिफिक कमेटी तैयार कर दी ना। ऑब्जर्वेशन का मतलब सिर्फ वहाँ बिग बाजार के केस काउंटर पे खड़े रहो, वहाँ खाली ऑब्जर्व करते रहो, आपको ऑटोमेटिकली लोगों का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च फोकस ऑन 6W। कितने W? 6W। हु, कौन से इंसान है, वे, कहाँ पे, वेन, कब, वाई, क्यों, वॉट, क्यों, बराबर, कि कौन सी, एंड वे, किस प्रकार से। क्लियर। ने दूसरी आती है कैजुअल रिसर्च। कैजुअल रिसर्च, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कैजुअल रिसर्च इज टू अंडरस्टैंड कॉज एंड इफेक्ट। देखो वहाँ पे था डिटेल में स्टडी करना। कैजुअल रिसर्च वो मेथड है जहाँ पे आप फाइंड आउट करोगे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ये हुआ तो उसके पीछे कारण क्या है, बिटवीन टू और मोर वेरिएबल। The marketing manager continuously make decision on the basis of relationship. But such assumption may be or may not be accurate. याद रखना डिस्क्रिप्शन में तो हम डिटेल में जाते हैं, मगर कैजुअल रिजल्ट में हम एजम्पशन पे चलेंगे। अब हो सकता है वो एजम्पशन सही भी हो, गलत भी हो। सो दे रिक्वायर जस्टिफिकेशन, यानी उसका आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर सही है तो क्यों है, गलत है तो क्यों है। Purpose, to understand what which variable are independent variable and which variable are dependent variable। कैजुअल रिसर्च का मतलब है जीने, अगर बीमार हुआ तो क्यों हुआ, आपको कोविड हुआ तो क्यों हुआ, कि आपने मास्क नहीं पहना था, आपने गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया था। कॉज एंड इफेक्ट, कि भाई तुमको कोरोना हुआ, ये इफेक्ट, इसके पीछे कारण क्या है, कि आप बेकार हो गए थे, बिंदास फिर रहे थे, मास्क नहीं लगा रहे थे, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करे, तो दिस आर द कॉज। पॉइंट नंबर 2, to determine the nature of relationship between causal variable and effect to be predicted, कि भाई कौन सा कारण होगा और उसका असर क्या होने वाला है। सिमिलरली जैसे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च भी प्लान और स्ट्रक्चर होती है, कैजुअल रिसर्च भी प्लान एंड स्ट्रक्चर होती है। उसके अंदर हमने 4 मेथड देखी थी, पैनल, ऑब्जर्वेशन, सर्वे और उसके बाद सेकेंडरी। मगर कैजुअल रिसर्च में एक मेथड है एक्सपेरिमेंट, जिसको अपने बोलते हैं लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट, या तो फील्ड, या तो पर्टिकुलर रूम में बैठ के तुम उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करो, या तो मार्केट में फील्ड में जाके एक्सपेरिमेंट करो। क्लियर, ये इलस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तुम्हारे 3 टाइप की रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एंड कैजुअल रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी का मतलब वही प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना, नो करना, कुछ नया नहीं, आप देख लो, पढ़ लो तो भी चलेगा, पढ़ लो आप लोग।
एमसीक्यू में बहुत काम का है। पढ़ लिए, चलो अब जाएंगे, बहुत कम है। फोकस ग्रुप इंटरव्यू, फोकस ग्रुप इंटरव्यू। In focus group interview, the interview of small group of members is conducted by trained moderator. याद रखना, ट्रेंड, कोई आलू चालू इंसान नहीं होगा, एक्सपीरियंस होगा, ट्रेनिंग लिया होगा। स्मॉल ग्रुप, इसको तो बोलते हैं फोकस ग्रुप, टीम नहीं बोला है, ग्रुप बोला है। इन फोकस ग्रुप इंटरव्यू द मॉडरेटर लीड डिस्कशन अमॉन्ग ग्रुप ऑफ पीपल। its main purpose is to understand the behavior of customer by listening to their discussion। ये मेथड का मतलब जी होता है ना मार्केटिंग के, भाई कस्टमर को सुनना, उनकी ज़रूरत क्या है, न उसके बाद उनसे डिस्कशन करना ताकि काम इजी हो जाए। कैरेक्टरिस्टिक, ग्रुप साइज, ग्रुप साइज a focus group generally include 8 to 12 members। Generally, small size ensure greater cohesiveness and freedom for natural discussion। नंबर टू, कंपोजिशन ऑफ ग्रुप, इसमें कौन होगा, तो फोकस ग्रुप इंक्लूड मेंबर फ्रॉम सेम डेमोग्राफिक एंड सोशियो कॉमन। कोई कॉमन हम एक जगह पे कर रहे हैं, जैसे ग्रुप ऑफ मैरिड वुमन शुड नॉट बी कंबाइंड विद यंग अनमेरिड वुमन, डाइवर्स वुमन, एक च लेवल के होने चाहिए। तो आप वो प्रोडक्ट के या पर्टिकुलर उस चीज़ के बारे में आसानी से कैलकुलेशन कर लोगे। अगर आपने लिया बीकॉम बॉयज़ टी वाई बीकॉम, तो टी वाई लेना है, फिर 11-12 के बच्चे नहीं लेना है। बराबर, आपने यंग कपल लिया है 20 से 25 बरस वाले, तो आपको 20 से 25 बरस वाले कपल पे स्टडी करना है। क्लियर। नंबर थ्री, फिजिकल सेटिंग, यानी तुमको वहाँ का एटमोसफियर रिलैक्स रखना है, सिस्टमेटिक रखना है, नेचुरल रखना है कि वो लोग वो चीज़ से डरे नहीं। ड्यूरेशन, फोकस इंटरव्यू मैक्सिमम 1 से 3 घंटे का होता है, बराबर। मगर उसके बाद ये भी बता दिया कि इसके अंदर तुम अपने आइडिया, अपनी बिलीफ, अपनी सब कुछ दे सकते हो। रिकॉर्डिंग, फोकस ग्रुप इंटरव्यू आर रिकॉर्डेड और ऑडियो कैसेट और वीडियो टेप। आज के ज़माने में ऑडियो कैसेट ये सब तो नहीं है, मगर डायरेक्टली क्या होता है, कैमरे में रिकॉर्डिंग होता है, जो आगे जाके रिप्ले करने में, ट्रांसक्रिप्शन करने में सब समझ में आ सके, यानी कि उनका फेशियल एक्सप्रेशन क्या था, उनकी थिंकिंग क्या थी, उनका ओपिनियन क्या था, उनका बॉडी मूवमेंट क्या था, उनका बोलने का तरीका क्या था, उनका बॉडी बोलने का लहजा क्या था, ये सब चीज़ों को कंपेयर किया जाता है। मॉडरेटर जो मेन होगा, द मॉडरेटर मस्ट एस्टैब्लिश रेपोर्ट विद द पार्टिसिपेशन। मोर ही शुड एनकरेज नेचुरल डिस्कशन। मैंने ऑलरेडी डेफिनेशन में बताया कि कोई ज़बरदस्ती नहीं, ओपन एनवायरनमेंट में ओपन तरीके से सिस्टमेटिकली होगा। खाली मॉडरेटर के पास क्या होना चाहिए, उसके पास ट्रेंड मॉडरेटर, मैंने बोला ना कि जो भी होगा वो ट्रेंड इंसान होगा, उसके पास नॉलेज स्किल होना ज़रूरी है, जो टॉपिक के बारे में डिस्कस किया जाए। उसको बोलते हैं फोकस ग्रुप, यानी पर्टिकुलर एक ग्रुप के ऊपर स्टडी करके फोकस करना ना, प्रॉब्लम को एनालिसिस करना और जो जरूरत है, जो मकसद के लिए बेगी उसका करना। सेकंड वन इज सर्वे मेथड, सीधी सी बात है, सर्वे करना। सर्वे मेथड इज बेस्ड ऑन क्वेश्चनिंग ऑफ रिस्पोंडेंट, सर्वे करना मार्केट में जाके। इन दिस मेथड वेरियस क्वेश्चन आर आस्क्ड टू रिस्पोंडेंट टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन। दिस क्वेश्चन इंक्लूड वेराइटी ऑफ एक्सपेक्ट, बहुत सब होगा, जैसे बिहेवियर क्या, आपका इच्छा क्या, आपका एटीट्यूड क्या, आप जागते हो कि नहीं, मोटिवेट करना, आपकी लाइफ स्टाइल क्या, आपका कैरेक्टरिस्टिक क्या, आपका डेमोग्राफिक क्या, आपका साइकोग्राफिक क्या, आपका बिहेवियर क्या है। द क्वेश्चन में भी आस्क वर्बली, ओरली, या तो रिटर्न, या कंप्यूटर के जरिए। अभी कंप्यूटर के जरिए हो रहा है ड्यू टू कोरोना। बट द प्रोसेस ऑफ क्वेश्चनिंग इज स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का मतलब सिस्टमेटिक है, डायरेक्टली जाके पूछ नहीं लेंगे, आपसे पहले बताएंगे हम कौन है, हम कहाँ से है, आपका नाम क्या है, सही तरीके से डिस्कशन होगा। द पर्पज ऑफ सर्वेज टू डिस्क्लोज टू द रिस्पर्सन, सीधी बात है, ये तो मैंने पहले ही बता दिया ना कि हम कहाँ से आए, हम क्यों रिसर्च कर रहे हैं, हमारे रिसर्च करने के पीछे मकसद क्या है। यूजुअली इन a questionnaire 4 to 5 option of responses are given against every question and respondent has to select from various responses। जैसे एग्जांपल दिया, शॉपिंग इन डिपार्टमेंट फॉर स्टोर इज अ फॉर डिपार्टमेंट से स्टोर में शॉपिंग करना कैसा है, तो एग्री, डिसएग्री, पार्शियली एग्री, समवॉट डिसएग्री, टोटली डिसएग्री। क्लियर। इससे क्या होगा, हमको कंज्यूमर के एनालिसिस इजीली खबर पड़ जाएगी। एडवांटेज क्या है, इजी मेथड है, रिलायबल है,
वेरिएबिलिटी के टेंशन नहीं होगी क्योंकि तुमने पहले से ही पहले 5 ऑप्शन दे दिए तो कस्टमर 5 में से जवाब देगा। इसके ऊपर से जो कोडिंग एनालिसिस करना है जो तुम यूनिट 3 में पढ़ोगे, डेटा एडिटिंग, डेटा कोडिंग, डेटा ट्रांसक्रिप्शन, वो ईजी हो जाता है। डिसएडवांटेज क्या है? इतनी बार तुम जाओ, जैसे 15 दिन से मुझे क्रेडिट कार्ड के लिए फ़ोन आ रहा है, सर आपका रिपोर्ट ये है वो है, मैं ना बोल देता हूँ। कितने कस्टमर ऐसे होते हैं जो अनविलिंग होते हैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, तो नहीं देंगे। कितने लोग अपने मन के हिसाब से नहीं, अनएक्यूरेट, गलत गलत जवाब दे देंगे। कितने कस्टमर ऐसे होते हैं, भाई देख तू कुछ भी पूछ, पर्सनल मत जाना, मगर पर्सनल तो पूछना पड़ेगा, बराबर। तो सर्वे मेथड इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा इन मार्केटिंग रिसर्च। देखो आ गया कौन से मेथड, ऑलरेडी तुम सब 11 12 से पढ़ते आ रहे हो। सर्वे में टेलीफोनिक इंटरव्यू, या तो फ़ोन करके या कंप्यूटर जरिए। पर्सनल इंटरव्यू घर आके, मॉल में या कंप्यूटर के ज़रिए। मेल, मेल पैनल के ज़रिए। इलेक्ट्रॉनिक मतलब इंटरनेट और ईमेल के ज़रिए। चारों चार डिटेल में दिए हुए। प्रोसेस, पर्सनल मेथड। पर्सनल इन होम का मतलब क्या होता है? इन दिस मेथड the interview of respondent is conducted face to face at their home. In this method, interviewer make the contact to the respondent at their home, ask the question and collect the responses. Recently, the use of this method is declining because it is costly. सीधी बात है, मैंने पहले ही बता दिया कि ये खर्चा ज़्यादा देती है, तो इसका इम्पोर्टेंस धीरे धीरे कम हो रहा है। मॉल इंटरसेप्ट का मतलब, जैसे आप मॉल में जाते हो तो वहाँ कोई कंपनी का सेल्समैन से एग्जीक्यूटिव खड़ा होता है, वो आपसे सवाल जवाब करता है। इन दिस मेथड द रिस्पोंडेंट आर इंटरसेप्टेड व्हेन दे आर शॉपिंग इन द मॉल एंड दे आर ब्रॉट टू टेस्ट फैसिलिटी इन द मॉल। द इंटरव्यू आज द क्वेश्चन, बराबर वहाँ खड़े खड़े पूछ लेते हैं। इससे क्या होगा कि मोस्ट एफिशिएंट है कि आप सपोज इलेक्ट्रॉनिक आइटम वाले, इलेक्ट्रॉनिक आइटम मॉल की, इलेक्ट्रॉनिक मॉल जो आसपास है, जैसे अपने यहाँ बड़ोड़ा के अंदर 3 4 बड़े बड़े मॉल है जहाँ इलेक्ट्रॉनिक आइटम मिलती है, वहाँ जाके खड़े होगे तो ऑटोमेटिकली लोगों की थिंकिंग, लोगों का टेस्ट, लोगों की लाइकिंग पता चल जाएगी। दूसरा, क्या आपका टाइम बचेगा, क्यों? क्योंकि आप वहाँ फालतू नहीं, वहाँ इलेक्ट जो वो जगह तुम खड़े हो जहाँ पे आपका बिजनेस है ना, आपका जो प्रोडक्ट है वही प्रकार के बिजनेस में, वो सिमिलर प्रोडक्ट के बिजनेस में वहाँ जाके खड़े हो, तो वहाँ पे वही कस्टमर आएंगे जो आपके वहाँ पे आने वाले हैं। ये काम का है। कंप्यूटर असिस्टेड पर्सनल इंटरव्यू, बहुत नई चीज़ है आज के ज़माने में, मॉडर्न ज़माने में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली टेक्निक है जी है CAPI, कंप्यूटर असिस्टेड पर्सनल इंटरव्यू। In this method, the respondent sit on a computer and answer the question on computer screen by using keyboard या mouse. Clear? These questions are very easy to understand and easy to answer for the respondent. This method is considered a personal interview. क्यों? क्योंकि कॉमन है कि यहाँ पे डायरेक्टली कस्टमर या तो क्लाइंट कंप्यूटर के साथ, कंपनी के साथ डील कर रहा है। Generally, this method is used to collect data at shopping mall, clinic, conference, trade show. Kiosk is also being used as a popular way to administer the CAPA। Kiosk तुम पढ़ोगे डिटेल में यूनिट 2 के अंदर। तो ये सब तुम्हारी सिंपल मेथड है, कुछ नया मैंने सिखाया नहीं आप लोगों को, वही सब बताया। इसमें से आधे से ज़्यादा तो आप प्रैक्टिकल ले सकते हो, बराबर है। यहाँ पे हमारा कम्प्लीटली यूनिट 1 मार्केटिंग रिसर्च कंप्लीट प्रोसेस कवर होता है।